Gosh, is this really me? Gosh, I look like trash. I'm sorry guys for this drama. You all know that I am so uncomfortable speaking into the camera. Even when my classes are going on, I just switch off my camera and just sit beside. मैं बिल्कुल भी comfortable नहीं हूँ. But this time I decided to just, set my insecurities aside and record this video because I really needed to speak face to face with you guys, with all the new 11th graders, with the coming generation of 10th graders and the 10th graders that have joined this family on Learn It with Kiara. So guys, जब हम class 10th में थे, especially I'm talking about myself, we all made a few mistakes, right? And I was supposed to be the good student of my class, someone who just scored well in all subjects. But yeah, there were a few mistakes that even I made. हम सब ऐसे ही हैं. We were all inexperienced, but yeah, I am so glad that I made those mistakes. Even if the board exams have been cancelled now, I don't regret it at all. So I am just, first of all, I would just close my eyes and just forgive myself for all the mistakes that I have committed, because I am not here to chastise myself or just anyone else. I am not here to scold you or just advise you like an old woman. No, I am just here to learn from my mistakes and just advise my juniors and just tell my fellow classmates, fellow 11th graders and seniors who are watching this video about the mistakes that I made, and I want to learn from my mistakes. So what I did is that I just took out my phone and just wrote down all those mistakes that I committed in class 10th, and here now I swear that I would not commit them again. Okay, so let's dive straight into the video and begin with all those mistakes that I did and what did not work in class 10th for me. Okay, so the first mistake was not sticking to basic resources. Guys, what happens is that हम लोग mostly रेफरेंस बुक्स के साथ इतना पीछे पड़ जाते हैं. यू नो व्हाट, आई जस्ट सॉ माय क्लासमेट्स डूइंग जस्ट रिविजन फ्रॉम दिस बुक एंड आई जस्ट वेंट टू द लाइब्रेरी व्हेन द ऑफलाइन क्लासेस रिज्यूम्ड कि मुझे ये बुक चाहिए. मैंने ओसवाल के पूरा डब्बा मंगा लिया सारे सब्जेक्ट्स का. सो नाउ आई रिग्रेटेड कि मैंने बेसिक रिसोर्सेज, दैट इज हमारी जो एनसीईआरटी है, मैंने उसके साथ स्टिकअप नहीं किया. गाइज, ऐसे ही आप लोग को ये एडवाइस नहीं दी जाती कि स्टिक टू एनसीईआरटी इज ग्रेट, एनसीईआरटी से प्रिपेयर करो, ऐसे ही नहीं बोला जाता. एनसीईआरटी में कुछ तो ऐसी खास बात है. So what I did is that I did not stick to the basic resources, and then I just ran from here and there for all the reference books and extra material, and that seriously ruined my mind. Like seriously, I was in constant pressure कि मुझे ये book भी पढ़नी है और NCERT मेरी clear हो नहीं रखी थी. So this is my advice, that just stick to the basic resources and don't run after reference books. This is a big scam, guys. Okay, so the second mistake that I made was कंसंट्रेटिंग मोर ऑन रिटन वर्क, दैट इज होमवर्क. तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, जो कि आई थिंक मैं 11th में भी कंटिन्यू कर रही हूँ इवन आफ्टर प्रॉमिसिंग माई सेल्फ, इज दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रिविजन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ओरल रिविजन और ओरल वर्क. आई एम ओनली like interested in written work. I just like to take out my pen and paper and just write down all the notes, do all the written homework that our teacher has sent us and all that. I don't focus on the oral material, the revision material that is to be coming in the exams, and that is a huge mistake. So I would really advise you कि don't just go after these notebooks कि कईयों को लगी रहती है नोटबुक पूरी करनी है, नोटबुक को सजाना है, you have to make pretty notes. No, it's not like that. Just make notes जो कि आपको समझ आए. आप किसी और को समझाने के लिए notes नहीं बना रहे हो. Alright guys, so this was my second mistake. The third mistake is that I did revision only 2 times. So I feel very guilty about it, but कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया. Okay, so I only did revision of the whole syllabus for 2 times in class 10th, and that I was very guilty about. I mean, अप्रैल भी आ गई थी, फिर भी मेरा 3 times रिविजन नहीं हुआ था. हर कोई कहता है कि 3 to 4 times रिविजन होनी ही चाहिए क्लास 10th में, but no, I was not one of those students. I only revised my whole syllabus for 1 or 2 times, and I'm guilty about it. So I would really advise you कि December तक अपना written syllabus, that is notes and all those tests, वो सब complete कर लो. उसके बाद from January onwards, चाहे आपके पेपर मार्च में हो चाहे अप्रैल में हो, कभी भी हो, 2 या 3 months आप केवल अपने revision को devote करो. That is very very important.
So yeah, this was the mistake that I made. The fourth mistake that I made was anxiety and burnout. Okay, so मेरे साथ क्या होता था, I'm very anxious. You know, this is another reason that I am uncomfortable speaking to you right now, looking at myself in the camera because I don't look good. I know that. खैर, I am a very anxious person and I get overwhelmed easily. Like ऐसा होता है कि मैं दिन में ज्यादा देर काम नहीं कर पाती, चाहे वो घर का हो, चाहे होमवर्क हो या कुछ भी. अगर मैं ज्यादा इंटेंस हो जाऊं तो मुझे बर्नआउट हो जाता है. दिस मीन्स आई गेट सो टायर्ड दैट आई डोंट स्टडी फॉर 2 days straight. एंड दैट इज सच अ ह्यूज मिस्टेक, राइट? इससे बेटर मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए ये होगी कि डोंट गेट टू हाइप्ड अप अबाउट दिस बोर्ड एग्जाम. ये एक नॉर्मल एग्जाम की तरह ही है, तो जस्ट लेट इट बी. ओके, जैसा आप प्रिपेयर कर रहे हो दैट्स गुड इनफ. डोंट गेट टू एंग्शियस अबाउट इट एंड कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो. इट्स नॉट दैट कि एक दिन आप 8 घंटा पढ़ लिया और दूसरे दिन फिर 2 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो. तो डोंट डू माई मिस्टेक, डोंट कमिट माई मिस्टेक्स. दैट्स व्हाई आई एम हियर राइट नाउ. Okay, so the next mistake that I did was making different notes for the same subject. Oh yes, I'm doing it right now too. Yeah, so what I did is that हमारी मैम हमें नोट्स लिखवाती थी, फिर मैं खुद के भी नोट्स लिखती थी. उसके बाद I just took out NCERTs and basic reference books and then I started making notes from them too. एग्जाम के टाइम आते तो मैं बुक लेके सामने दोबारा से नोट्स को लिखती. So what I did is that एक ही सब्जेक्ट के मेरे पास सेम चैप्टर के 3 या 4 अलग अलग जगहों पे नोट्स हो जाते थे and that was so very confusing because we have our NCERTs, we have our reference books. तो इतना मटेरियल हो जाता था कि मेरा बैग में है, अलमारी भी भरी हुई है, ऊपर हमारे स्पेस है वहां पे भी भरा हुआ है एंड नीचे एक और बैग है, वो बुक्स से ही भर जाता था. सो आई एम वेरी गिल्टी अबाउट इट एंड नाउ आई वुड रियली एडवाइस यू कि आप अपने केवल 1 या 2 नोट्स रखो. एक तो जो स्कूल वाले प्रोवाइड कर रहे हैं वो, और दूसरे जो आप खुद से बना रहे हो. आई नो कई जगहों पे ऐसा होता है कि कोचिंग क्लासेस भी नोट्स प्रोवाइड करती हैं. अगर आप कोचिंग के भी नोट्स पढ़ते हो देन इट्स good, but I would really advise you that making your own notes is very very important when you are in class 10th. In fact, it is important even if you are in class 9th, 11th, 12th, any class. अपने खुद के notes बनाएंगे, that's very good. Okay, so another mistake that I made was giving lesser time to studies. So yes, like a normal student, I am very guilty of scrolling on Instagram and just binging on YouTube, watching web series, watching movies. वैसे मैं टीवी नहीं देखती फिर भी. So मैं इस कारण पढ़ाई को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती थी. एज अ 10th ग्रेडर जब मैं 10th में आई तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था नहीं आई विल स्टडी फॉर एटलीस्ट 4 to 5 hours a day. बट यू नो वट, आई जस्ट मेड अ नोटबुक टू रिकॉर्ड माई सेल्फ कि मैं कब पढ़ रही हूँ, कितना पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ. एंड देन रिजल्ट्स वर शॉकिंग बिकॉज आई वॉज ओनली स्टडिंग फॉर अबाउट लाइक 2 to 3 hours a day. एंड उसमें भी क्या होता था, रिविजन वर्क या लर्निंग वर्क नहीं होता था. दैट ओनली कंप्राइज्ड ऑफ द होम वर्क और रिटन वर्क दैट द स्कूल टीचर्स प्रोवाइडेड अस. सो आई वॉज वेरी गिल्टी ऑफ स्टडिंग लेस. आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि ये साथ साथ यूट्यूब भी मैनेज कर रही है, सो शी मस्ट बी अ टॉपर. बट नो, इवन इफ आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, ये मेरी गलतियां थी कि मैं कम पढ़ती थी, मैं बहुत कम पढ़ती थी. सो आई वुड रियली एडवाइस यू कि प्लीज एटलीस्ट डिवोट 3 to 4 hours of your day to your studies. It's very very important. Okay, so the next mistake that I made is taking long breaks. You know what guys, मैं क्या करती हूँ, मेरे को बहुत गंदी आदत है कि 1 घंटा पढ़ाई की फिर 2 घंटे का ब्रेक, एंड इट इज सो डिजास्ट्रस फॉर मी एंड आई स्टिल डू दैट. मतलब थोड़ा बहुत पढ़ के भी आई फील लाइक ओ हो आज तो कितना पढ़ लिया, ओ नो आई हैव टू गेट अप नाउ, आई हैव टू दिस टास्क. एंड वो करते करते यू नो व्हाट, अगर तुम दिन में 3 बार भी पढ़ रहे हो और 1-2 घंटे का ब्रेक ले रहे हो तो ये लगा लो 4 घंटे तो तुमने वेस्ट किए हैं. सो डोंट डू दैट. अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो देन अ 15 minutes break or 20 minutes break is sufficient. If you're studying for half an hour then I think you should not take a break. Sorry to say that. If you're studying for 45 minutes though, जैसे मेरा 45 minutes तक का सेशन होता था, 45 to 50 minutes का, then you can take a 10 minutes break. That's enough for you. But otherwise, please don't do this mistake that I did. Don't just spend more times on long breaks. Okay, so let's just move on to the next mistake that I made. Getting intense for a day or 2 and then getting exhausted and overwhelmed. हाँ, तो if it would be possible I would just show you that notebook of mine जिसमें मैं अपने स्टडी आवर्स रिकॉर्ड करती थी. तो यू नो व्हाट आई डिड इज दैट मेरे को ना एकदम से मोटिवेशन मिल जाती थी, लाइक किसी टीचर से बात कर ली या फिर मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो मेरा सीनियर भी है, श्रेष्ठ केंद्रा, मैंने उससे बात कर ली. सो आई वाज जस्ट
I would just get so motivated and then I would study for 2 or 3 days very intensely, like हाँ लड़की ने आज तो दिन में 6 घंटे पढ़ लिए, 7 घंटे पढ़ लिए, एंड हियर आई एम टेलिंग यू कि मैं 2 या 3 घंटे ही पढ़ पाती थी. तो 3 दिन ऐसा होता था, 2 या 3 दिन की मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी एंड आई वाज सो वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ. बट देन बाद में ऐसा क्या होता था कि मैं ना बहुत एकदम से ओवरवेल्म्ड हो जाती थी कि मेरे अंदर इतनी सारी फीलिंग्स आ जाती थी, फिर मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाती थी. जो माइंड में जाता वो सारा निकल जाता था. मेरे को बर्नआउट हो जाता, मेरी तबीयत खराब हो जाती थी. सो मैं इतना टेंशन ले लेती थी उस टाइम पे. दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि rather than getting intense you should just stay consistent with your studies. अगर आप दिन में 3 से 4 घंटे भी पढ़ रहे हो with your full concentration then it is enough. seriously. तो मेरी तरह ये गलतियां मत करना कि कुछ दिन के लिए, जैसे कि कई बच्चे होते हैं कि एग्जाम से 1 महीना पहले इंटेंस हो जाते हैं तो उनसे नहीं हो पाता ना. फिर ओके एक बार को वो रिजल्ट्स ले आएंगे बट बाद में उनके दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा. सो डोंट डू दैट मिस्टेक प्लीज प्लीज. आई एम रियली एडवाइजिंग यू. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मिस्टेक एंड दैट वाज not solving practice papers and previous year questions often enough. So here's to all those classmates of mine जिन्हें लगता था कि मैं टॉपर हूं और जिन्हें लगता था कि मैंने कितने प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लिया, मेरी कितनी भारी रिवीजन चल रही है. गाइज हियर आई एम टेलिंग यू, आई एम बीइंग टोटली ऑनेस्ट हियर कि अब तक मैंने शायद से एक भी पेपर सॉल्व नहीं किया ऑफ एनी सब्जेक्ट. वो अलग बात है कि सोनिया मैम हमारी इंग्लिश टीचर ने हमें ट्रिक कर दिया प्री बोर्ड के टाइम पे. उन्होंने हमें 10 सैंपल पेपर्स भेजे, फिर उन्होंने कहा कि मैं इसमें से डाल सकती हूँ तो यू शुड प्रिपेयर देम. तो मैंने वो 10 तो कर लिए थे, उनका ग्रामर पार्ट कर लिया था. उसके बाद मैंने कोई भी सैंपल पेपर हाथ नहीं लगाया किसी भी सब्जेक्ट का एंड आई एम सो गिल्टी अबाउट इट. व्हाट वुड माई टीचर्स बी थिंकिंग हियर. खैर सो आई एम एडवाइजिंग यू कि मैंने पता है प्लान बहुत बनाई थी कि मई में पेपर होगा तो आफ्टर इन अप्रैल आई वुड नॉट डू रिविजन, आई वुड नॉट डू एनी रिटन वर्क, आई वुड ओनली सॉल्व प्रैक्टिस पेपर्स एंड आई वुड ओनली जस्ट पे अटेंशन टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और PYQs एज वी टेल देम, जैसा हम कहते हैं. सो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. कहते हैं ना कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है. सो यू शुड जस्ट रियली कीप दैट इन माइंड. प्लीज मैं एडवाइस दे रही हूँ, 1 महीना भी नहीं ना, एटलीस्ट 15 to 20 डेज जरूर प्रैक्टिस पेपर्स और प्रीवियस ईयर्स जरूरी हैं, बिकॉज दे गिव यू एन आइडिया कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. अच्छा अगर आइडिया भी नहीं दे रहे हैं तो आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी एंड ट्रस्ट मी गाइज 11th में वो बहुत काम आने वाली है. बीइंग एन 11th grader आई एम सेइंग दिस. Okay, so the 9th mistake that I made is not extracting question answers out of NCERT. This might be the 9th or 10th mistake. Sorry, I'm not counting at the moment. Okay, so you know what? I used to watch Shobhit Nirvan's video. Shobhit Bhaiya is a really great guy, and he advised us कि NCERTs पढ़ते पढ़ते when you're reading, especially science NCERT, पढ़ते पढ़ते जो क्वेश्चन साथ में आ रहा है उसको लिखते जाओ ऊपर वहीं की वहीं. I did not do that. A long pause. Sorry. What I did is that I only studied from my notes because I believed कि मेरे notes NCERT से भी ज्यादा superior हैं. I was being vain, I know, but yeah, seriously you need to pay attention to the NCERT lines क्योंकि कुछ भी घुमा फिरा के आ सकता है. मुझे कईयों ने ऐसा बोला था. एंड NCERTs में से ही निकल के क्वेश्चंस आते हैं. तो जो NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके अलावा जो पैराग्राफ्स में क्वेश्चंस होते हैं, प्लीज कीप इन माइंड वाइल रीडिंग कि कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है. एंड अगर ऐसा है तो प्लीज जस्ट पे अटेंशन टू इट. ओके, सो द लास्ट मिस्टेक दैट आई हैव ऑन माई लिस्ट इज नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन मैथ्स. राइट. ओके, सो बीइंग अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, साइंस मेरी बहुत अच्छी, साइंस नहीं सोशल साइंस, सॉरी गाइस, सॉरी. SST मेरी वन ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट्स थी. बट व्हाट आई डिड इज दैट जियो में कितने सारे मैप्स है ना, लाइक रिवर्स के हैं, डैम्स के हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के हैं, थर्मल पावर प्लांट्स के हैं, एंड एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में से भी कितने सारे हैं. बट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ देम. सब बातें बनानी आती थी मुझे कि मुझे इतना करना है, मुझे इतना करना है. मैंने मैप्स आज तक नहीं किए थे. हाँ, एक बार मुझे याद है जब हमारे प्री बोर्ड्स चल रहे थे उससे पहले मैंने एक बार एग्जाम आइडिया और ओसवाल खोल के देखे थे कि किस किस मैप्स में कहाँ कहाँ लोकेशन है. एंड आई एम सो लाइक, मैं क्या बोलूँ, आई एम सो डम कि मैंने प्री बोर्ड्स के टाइम पे थिरुवनंतपुरम को कहाँ मार्क कर दिया था, चेन्नई साइड में, वाइल इट वॉज इन केरला. सो आई एम सॉरी गाइज. सो मैं ऐसी ही हूं, मैं क्या करूं. मतलब यू शुड रियली लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स. नाउ आपको मैप्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. अगर आप एंड के महीने में मैप्स करने लगते हो तो आपसे नहीं हो पाएंगे सीरियसली. इसलिए मैं कह रही हूँ जैसे जिस चैप्टर होते जा रहा है साथ साथ में मैप्स
को कलर करते जाओ, मार्क करते जाओ, एनोटेट कर लो और उसके बाद उसको अपनी नोटबुक में चिपका दो. Okay, so these were all my mistakes that I made in class 10th. These things did not work out for me in class 10th. And I do feel guilty here, but now I have forgiven myself. I just told this to you in the beginning. But अगर आप एक 10th grader हो या younger, junior हो या फिर आप जिस भी क्लास में हो, आई थिंक somehow you can relate to my mistakes. क्योंकि कई बाकी जो बताते हैं अदर यूट्यूबर्स, आई डोंट नो अबाउट देम, मैंने उनकी वीडियोस नहीं देखी है, बट आई थिंक जितना रियलिस्टिक तरीके से मैंने अपनी मिस्टेक्स को प्रेजेंट किया, आई डोंट थिंक दैट दे डू सो टू. सो आई वुड रियली थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड स्टिकिंग अराउंड टिल द एंड, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में अपनी मिस्टेक्स को क्लैरिफाई किया. And now I am just forgiving myself and promising to myself that I won't be committing the same mistakes in class 12th. At least 10th के पेपर नहीं हुए, कोई बात नहीं. 10th से जो भी सीखा है वो सारा 12th में अप्लाई करेंगे और इस बार अच्छे मार्क्स लाएंगे. So yes guys, all of you those who have been watching this video and supporting me, thank you so much guys. And I know I look like trash. Oh my god, I should not say like that, but still. Okay, so thank you so much guys for supporting me. Lots of love from my side. Goodbye.